وہ بڑے آرام سے اس کی سماعتوں پر بم گرا گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ کا خود ساختہ لگائے اندازے اپنے پاس رکھیں۔ وہ یکدم بپرا خود ساختہ نہیں ہے۔ سب سمجھتی ہوں، میں جس طرح تمہیں دیکھتی ہوں اور تمہارا بھی اس کی طرف متوجہ ہونا۔ کیوں وہ بار بار فون کرتی ہے؟ یہ چوہے بلی کا کھیل ڈراپ کرو۔ میں تم دونوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھی۔ ہاں، بہت سمجھدار ہیں آپ۔ تبھی آپ کو علینا کی فیلنگز نظر آ گئی، مگر خیر یہ بتائیں، اپنے لیے تو آپ سٹینڈ لے نہیں سکتی، میرے لیے کیسے لیں گی؟ روایت بدلی تو نہیں؟ اب بھی وہی ہے۔ پھر سیدوں کی نسل خراب کرنے کا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا تھا۔ تب بات اور تھی اور اب وقت کچھ اور ہے۔ میں یہ سب کچھ کیسے کرتی ہوں یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی خراب ہوئی، چاہتی کہ جیسے میری زندگی خراب ہوئی ویسے تمہاری بھی ہو۔ میں اس فرسودہ رسم کی وجہ سے اپنے جذبات اور خواہشات کو رونت چکی ہوں اور اب اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ جو تمہاری خواہش ہے میں اسے ضرور پورا کروں گی، علینا کو تمہاری زندگی میں لے کر آؤں گی۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، بدلے میں وہ اسے گہری مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو ہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کی نظریں عجیب تاثر دے رہی تھی، مگر میرا کوئی ارادہ نہیں سیدوں کی نسل خراب کرنے کا۔ میں جانتا ہوں میری نسل کم سے کم ایک سے یہ زیادہ سے ہی چلے گی، آگے کا دیکھا جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے ہم مل کر یہ روایت توڑیں گے۔ احرار کے بے باک الفاظ اور لہجے پر میرانہ کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ یہ کیا رٹ لگائی نسل خراب کرنے کی؟ تم پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، میں نے سوچا تھا کہ تم صحیح عمر کو پہنچ کر صحیح غلط کا فیصلہ کرو گے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ گے، لیکن تم بھی دقیانوسی سوچ رکھنے والے عام انسان نکلے۔ قبیلے، نسل، ذات پات، رنگ، زبان کی برتری، اور جب اسلام نے نہیں رکھی تو ہم کون ہوتے ہیں یہ برتری قائم کرنے والے؟ وہ غصے سے بولی اور وہ دلکشی سے ہنسا تھا۔ میرانہ، آپ میری بات سمجھی نہیں۔ ریلیکس ہو کر ذرا غور کریں۔ بے اختیار وہ آہستہ سے اس کے نازک کندھوں کو ہلکا سا تھامتا اس کے نزدیک ہوا۔ میرانہ کی تو جیسے روح فنا ہوگی۔ وہ یوں ہی مسکراتا کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھے باہر چلا گیا۔ اس کی اتنی جرأت اور بات پر دھیان دیا تو میرانہ کا چہرہ شرم سے سرخ رنگ ہو گیا تھا اور اپنی ازلی غصے اور رعب سے تن کرتی اس کے کمرے میں پہنچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا بکواس کر کے آئے ہو ابھی؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ غصے سے کانپتی وہ داڑھی تھی۔ کمال ہے، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے بدتمیزی نظر آ گئی۔ رہی بات ہمت کی تو مت پوچھیں، ہمت بہت ہے، بس آپ کا خیال کر جاتا ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ اپنی حد میں رہو اور نظریں نیچے کرو۔ اس کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اگر نیچے کروں تو آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا تھا۔ اب تو مارے صدمے میں میرانہ کا برا حال تھا۔ یہ وہی احرار تھا اور اس کی ہر بات ماننے والا جس نے کبھی اس رشتے کا احساس تک نہیں دلایا، مگر آج وہ سر تا پیر تک بدلا ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ مجھ سے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ہاں بالکل اندازہ ہے اور مکمل ہوش و خرد میں ہوں۔ اس نے قدم اٹھا کر اس کے اوپر اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو کم کیا اور بے اختیار پیچھے ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا اپنا آپ عیاں کرنا، مگر اب آپ کی غلط سوچ اور رویے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ایسا انداز اپناؤں۔ علینا صرف میری کلاس فیلو ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں، اور جس کی اہمیت میری زندگی میں سب سے زیادہ ہے وہ اس وقت عین میری نظروں کے سامنے کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی ہے۔ وہ مزے سے بولا تو میرانہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ عجیب احساس کمتری نے سر اٹھایا تھا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ وہاں سے چلے گی اور پھر ساری رات بے تحاشا روتے ہوئے گزاری۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر دل اور دماغ عجیب کشمکش میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک واضح فرق حائل تھا ان دونوں کے بیچ میں۔ اس فرق کو بخوبی محسوس کر رہی تھی اور اس کی سوئی 25 اور 30 کے بیچ گھوم رہی تھی۔ وہ کم عمر لڑکا جو بچپن میں اس کی گود میں کھیلا، جس پر وہ بڑوں کی طرح روب ڈالتی، ڈانٹ کر پڑھاتی اور پھر لڑکپن سے جوانی تک اس کے ساتھ سایہ کی طرح رہی، کتنا مشکل تھا اسے بھائی سے شوہر کے روپ میں دیکھنا۔ 10 سال پہلے وہ اس کرب سے گزری تھی اور آج جب وہ اپنی زندگی کو ایک خاص نقطۂ نظر سے مرکوز کر چکی تھی تو وہ اپنا حق مانگنے چلا آیا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ سمجھوتا نہیں کرے گی اور اسے حق سے بری رکھے گی۔ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے اس کے سامنے تان جائے گا۔ اس نے تو اس رشتے کو کبھی محسوس تک ہی نہیں کیا تھا، پھر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس سب کا ایسا شدید اثر ہوا کہ صبح اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ شدید سر درد کی وجہ سے اسے بخار نے آن گرا۔ احرار معمول پر اٹھ کر تیار ہوتا کچن میں آیا تو اسے وہاں موجود نہ پا کر حیران ہوا۔
7 बज चुके थे और नाश्ते के कोई आसार नहीं थे। वो सीधा उसके कमरे में चला आया। क्या बात है, आज भूख हड़ताल तो नहीं? 7 बज गए हैं, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो टस से मस ना हुई थी। उसने पुकारा मगर जवाब न पाकर वो एकदम हैरान होता हुआ उसके करीब चला गया, जो आंखें मूंदे लेटी थी, और उसने हाथ बढ़ाकर यूं ही उसका गाल थपथपाया जैसे ही उसके गर्म सा शोला उसे छू गया था। ओ, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। वो बौखला गया और फिर भागकर ठंडे पानी का बाउल भरकर लाया। रुमाल को अच्छी तरह भिगोकर उसके सर पर पट्टियां करने लगा था। कुछ ही देर में उसकी मेहनत रंग ले आई थी। वो नीम बेहोशी से होश में आने लगी थी और उसने पानी का बाउल टेबल पर रखा था और बाहर निकल गया। ट्रे हाथ में लिए वो जब भी कमरे में दाखिल हुआ था तो वो बेदार हो चुकी थी। चले उठे, शाबाश, नाश्ता कर लें और फिर टैबलेट लें। उसके करीब बैठा हुआ वो एक स्लाइस पर जैम लगाने लगा था और उसने एक नज़र और फिर घड़ी की तरफ देखा था और बहुत तेज़ बुखार था। ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी पड़ी थी क्योंकि इतनी सुबह तो किसी डॉक्टर को मिलना मुमकिन नहीं था। अब नाश्ता करके दवा ले लें, फिर थोड़ी देर के बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे, वो फिक्रमंदी से बोला था। उसने उठने की कोशिश की थी। एहरार ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे दोनों बाजू से थामकर उठने में मदद करनी चाहिए थी, जैसे मिराना ने बुरी तरह से झटक दिया था। डोंट टच मी अगेन, वो पिलकारी थी। एहरार ने स्लाइस का पीस उठाकर उसे खिलाना चाहा मगर उसने मुंह फेर लिया। ना तो मुझे नाश्ता करना है और ना ही कोई टैबलेट खानी है। मेरी फिक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। समझ आई? उसने बेबराबरी का इजहार किया। मगर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक आप ये दोनों काम नहीं कर लेती। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो अभी कॉल करता हूँ वापस आई को, उन्हें सब बताता हूँ आपको कितना बुखार है और इसके बावजूद आप बेज़िद हैं। वो दवाई नहीं लेंगी, इसके बाद तो आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी और परेशान होंगे तो वो अलग। उस बात पर वो सबसे ऊँट मीच गई थी। उसने होंठ घूर कर एहरार को देखा और बीच उताप खाते हुए दूध का गिलास उठाया। चंद लम्बे सैर मार खार करते हुए दवाई ली और झटके से कमर खुद को खींच कर लेट गई थी और एहरार लबों पर मुस्कुराहट बखेर गया था। उसने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा तर्क कर दिया था और कपड़े चेंज करके अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। 9 बजने के करीब वो डॉक्टर को खुद ही घर ले आया था। चंद मेडिसिन और रेस्ट का कहकर वो डॉक्टर चला गया। एहरार के पास आता वो बोला था, डॉक्टर जनी टेंशन का बता रहे थे, आपको जिस्मानी आराम के से ज़्यादा जहन पुरसुकून रखने की ज़रूरत है। जब तक तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगे कम से कम तब तक तो मुझे ज़हनी सुकून नहीं मिलने वाला। खशमगी निगाहों से उसे घूरते हुए अंगारे चिबाते बोली थी, तो मैं कहाँ जाऊँ अपना 6 फुट का वजूद लेकर? आपके और इस घर के अलावा तो कोई मेरा ठिकाना ही नहीं है। वो मजाक के तौर पर उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। बस बहुत हुआ, मैंने फैसला करी, मैं हवेली चली जाऊंगी और मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। वालों में उंगलियां फंसाई वो बहुत डिस्टर्ब दिखाई दी। हरगिज़ नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जब तक मेरी स्टडी मुकम्मल नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे और एक साथ फिर मैं बाद में चलेंगे ना इकट्ठे रोज़ हवेली। वो गतिये से बोला था। तो मेरा नदम बहुत सी रह गई थी। अच्छा ये बहस छोड़ें, ये बताएं आज दोपहर में आपके लिए क्या पकाऊं? सूप तो बस मैं अभी रेडी कर देता हूँ, उसके अलावा बताएं। अब ये मत कहिएगा कि मुझे कुछ नहीं खाना। उसने हल्की भरी निगाहों से एहरार को देखा जो आंखों में ढेरों जज्बे लिए उसे यहीं देख रहा था। मिराना पहले ही चिड़चिड़ी हुई थी, ऊपर से एहरार ने खाना बनाते हुए उसकी नाक में दम कर रखा था। नमक कितना डालना है, चावल कितने लूँ, अब क्या करूं, कितना पानी डालूं? वो एक एक बात पूछकर उसका दिमाग चाट चुका था और 1 बजे जाकर उसका खाना रेडी हुआ। शेफ एहरार के हाथ का तैयार करता लजीज पुलाव तैयार है, नोश फरमाइए। भूख तो पहले ही लगी थी, सामने खाना आता देखकर वो हाथ रोक नहीं पाई। पुलाव वाकई बहुत मज़ेदार था। बुखार की वजह से उसके मुंह का जायका फीका हो रहा था। चटपट पुलाव खाकर उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। खाना खाने के बाद उसने चाय को पूछा तो वो मना कर गई और आराम करने के लिए से कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद उसे चाय की तलब हुई। कमरे से बाहर निकलते उसने किचन की तरफ बढ़ते कदम की किसी की आवाज़ सुनते ही ठटकर रुक गई थी। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ। वो मानने को तैयार ही नहीं। मेरी फीलिंग्स मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो सरवाइव करें। मेरे लिए इतने साल उन्होंने मेरी खिदमत करते हुए गुजारे और वो भी इंसान है। ज़िंदगी रंगों पर उनका भी कोई हक है। उन्होंने भी वो तमाम खुशियाँ मिलनी चाहिए जो हर अज़दवाजी ज़िंदगी में एक लड़की को उसके शोर से मिलती है। वो फ़ोन पर भाभी से डिस्कस कर रहा था। इसका मतलब ये सब भाभी और उसकी मिली भगत थी। वो अपना खराब दिल लिए वापस कमरे में चली आई। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसका फ़ोन बजा था जहाँ भाभी की कॉल आ रही थी और उसने कोप से फ़ोन को की तरफ देखा और फिर यस का बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा गई। कैसी हो मेरा ना? सलाम दुआ के बाद वो बोली थी, ठीक हूँ
मैं इसके लहजे में इंतहाई संजीदगी थी, लेकिन आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुम्हारी आवाज़ से क्या होता है? वो बेजारगी से बोली, कुछ हो ना हो, कम से कम तबीयत का तो पता चल जाता है। इतनी चुप चुप क्यों हो? उसकी काफ़ी देर खामोश रहने पर वो बोली, सोच रही हूँ जब कोई अपना भरोसा तोड़ता है तो उसकी तकलीफ का आलम क्या होता है। वो खुद इतनी अजियत से बोली थी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? वो उलझ रही थी। इसका मतलब आप खुद से पूछें, जवाब मिल जाएगा। मेरा जो भी बात है खुल कर कहो, घुमाओ फिराओ मत। मुझे अंदाज़ा नहीं था एरार के इस रवैये के पीछे आपका हाथ होगा। आप उसे उकसा रही हैं कि वो मुझे मेरा हक दे। वो जब तोड़ते हुए बोली थी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं चिल्लाऊंगी। समझदार है, सब जानता बूझता है। मैं तो सिर्फ उसे सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ और तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो। वो फौरन क्लियर करते हुए उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। एक साथ एक साथ एक साथ रहने की बात कर रही हैं? आप मर अब मर चुका है मेरा दिल, और जम चुके हैं मेरे एहसासात। मेरे अंदर अब कोई भी जज्बे नहीं है। समझौते का घोंट पी चुकी हूँ मैं। खुदा के लिए मेरे हाल पर छोड़ दें, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। वो कतियत से कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर गई थी। और उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा था? अलीना तो सिर्फ एक मोहरा थी उसे चिल्लाने के लिए। वो उसे अहमियत दे ही इसलिए रहा था कि उसका रद्द-ए-अमल देख सके। जबकि मिराना ने भाभी को अलीना की बाबत बताया था तो उन्होंने फ़ौरन एरार को फ़ोन करके उसके कान खींचे, जिसकी पर एरार ने उन्हें क्लियर किया। ये तजवीज़ भी उन्होंने ही उसे की थी कि ताकि मिराना का रिएक्शन देख सके। पहले तो एरार को के गुस्से से भरे तासुरात देखकर वो बहुत मज़ा आया था, लेकिन जल्दी बनती उसको वार्न करने आई थी और उसे लगा तो मिराना को हैंडल करना बहुत आसान है। लेकिन जब उसके हालात उसके बारे में मालूम हुआ तो उसे झटका लगा। वो तो अलीना के साथ उसे नत्थी करने के चक्करों में थी। तभी उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए एरार ने अपना रवैया अपनाया जो उसे बहुत पहले अपना लेना चाहिए था, जो सिर्फ उसके गुस्से की वजह से खामोश था। बचपन की अटैचमेंट रिश्ता बदलते ही गहरी अनसीयत में तब्दील हो गया था, मगर उसने कमाल महारत से अपने जज्बों को छुपाए रखा, वरना वो उसके से गाफिल नहीं था। उसके हंसने, बोलने, चलने फिरने, खाने पीने के हर अंदाज से वो असबर था। वो जानता था कि जब वो अपने जज्बे उस पर आश्कार करेगा तो वो भड़केगी, और ऐसा ही हुआ। उसे बहुत मुश्किल लग रहा था ये पहाड़ सर करना, मगर वो पीछे हटने वालों में से न था। राहिल की शादी का कार्ड आया था और उसका पूरा इरादा था कि वो मिराना को अपने साथ लेकर जाए, मगर वो मानकर नहीं दे रही थी। जब एक बार फिर बाबा साहब की धमकी कारगर साबित हुई थी और उसे मजबूरन मानना पड़ा, वो भी सिर्फ बारात का फंक्शन अटेंड करने की हामी भरी थी। स्किन कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, बालों का जूड़ा बनाए वो बहुत डिसेंट और खूबसूरत लग रही थी। नाजुक सी ज्वेलरी और लाइट मेकअप में वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। दुपट्टा सर पर लेकर उसने अपनी रवायती शाल कंधों पर डाल ली। शरबती आंखें बिना किसी सिंगार के ही गजब ढा रही थी। फिर भी उसने काजल उठाकर एक गहरी लकीर आंखों में से डाली थी। ऐश करे 3 पीस सूट में लंबे सरापे के साथ वो इंतहाई डैशिंग लग रहा था। उसने मिराना को बुलाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो आगे ही एक कदम बढ़ा ना पाया और यकटिक उसे तकते हुए और पूरा दरवाज़ा खोलना ही भूल गया था। मोबाइल हाथ में लिए जो ही सीधी खड़ी हुई तो वो टिकटिकी बांधे उसे खुद की तरफ घूरते हुए पाया तो माथे पर बल पड़ गए थे। घूरना बंद करो, अपनी लिमिट्स याद रखो, चेहरे पर के जाविये खींचती हुई बोली थी। और मैं अपनी लिमिट्स में ही हूँ, वरना आप मेरे हक का 1% भी बर्दाश्त न कर सके। मानी हेज बात पर वो उसे गुस्से से घूरने लगी। रास्ते से हटो या यूं ही खड़े रहने का इरादा है? उसे चुपती नज़रों से परेशान होते हुए बोली थी। ठहर जाए कुछ देर, के दिल अभी भरा नहीं। बेइख्तियार ज़ुबान से फिसला, जिस पर वो शरारत से मुस्कुरा दिया। एहरार की नज़रें उसके तवाफ अमल में मसरूफ़ थी और वो अंदर ही अंदर सिमट कर रह गई थी, मगर बाहर से कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी। सो इसी सर्द अंदाज में उसके सामने खड़ी रही। अच्छा, तुम्हें ठहरना है तो तुम ठहरो, लेकिन मुझे तो बाहर जाने दो। उसकी शरारतों और जज्बों के आगे वो अब हारने लगी थी। ओह, इकट्ठे चलेंगे ना, सिर्फ चंद ही तो मिनट रुक जाएं। इल्तिजाइया अल्फाज से अगर डिस्टर्ब करोगे तो मैं यहीं कहीं नहीं जाऊंगी। एहरार के रिक्शे कर रोने जैसी हो गई थी और जिस पर एहरार को ही हार मानना पड़ी। और वो बहुत ज़िद्दी हैं। कभी मेरी भी बात मान लिया करें। मैं सिर्फ यही सही बातें मानती हूँ, गलत बातों को मानना मेरी आदत नहीं। वो बेतासुर लहजे में बोली थी। ठीक है। वो फ़ौरन संजीदा होता हुआ नरमी से सारा मामला निपटाने
निपटाता खामोशी से इख्तियार कर गया और बरसों का गुबार था, आहिस्ता आहिस्ता ही धुलेगा। गाड़ी की चाबी उठाता वो जैसे ही बाहर आया तो उसे फ्रंट सीट पर बैठा देखकर खुशी से झूम उठा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और लाताल्लुक बैठी मिराना को नजर भर कर देखा, जो गर्दन मोड़े लापरवाही की हद पर थी, और उसने म्यूजिक ऑन किया। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, ये क्या बेहूदगी है। उसे म्यूजिक ऑफ किया, और इसमें बेहूदगी क्या है, गाना ही तो है। एक जरा नजर सामने से उठाते उसकी तरफ देखा। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं, वो सख्ती से बोली थी, जिस पर वो एहरार अपना सर पीट कर रह गया था। वहां पहुंचकर उसे टकराव से सबसे पहले अलीना से ही हुआ था। एहरार को देखकर उसने जिस वरफ्तगी का इजहार किया था, मिराना तो बस देखती ही रह गई थी। वो उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। सबसे सलाम दुआ के बाद वो वहां सजी कुर्सियों पर आकर बैठ गई थी। एहरार के मेल फीमेल मिक्स फ्रेंड्स गैदरिंग देखकर वो उलझ गई थी, क्योंकि लड़कियों की ड्रेसिंग काफ़ी बेबाक थी। थोड़ी देर के बाद एहरार भी सब दोस्तों के साथ वहां चला आया। उसने मिराना की सबसे तारुफ करवाया। वो खड़ी होकर सब लड़कियों से मिली और उन सब की नज़रों में उसके लिए सताइश थी। आप क्या करती हैं? आई मीन स्टडी वगैरह कुछ? इनमें से एक ने सवाल किया था। जी मैंने एमफिल किया है इंग्लिश में, और अब ये हाउस वाइफ है। एहरार ने उसका जुमला बीच में ही उचक लिया। क्या आप मैरिड हैं? वाह, लगता तो नहीं। शोहर कहाँ होते हैं आपके? अलीना हैरत से डुबकियाँ खाते हुए पूछ रही थी। शोहर यहाँ पाए जाते हैं इनके उसने पास खड़ी मिराना को एक बाजू के साथ में लेकर उसे लगाया, और इतने लोगों के बीच उसकी गुर्बत पर वो सुलग उठी, जबकि एहरार के होंठों पर दिल अवेज़ा मुस्कान थी। वो इसके हिसार में ज़रा सा कसमसाई। अरे वाह यार, बड़ा खूबसूरत कपल है, बहुत बड़ा गुन्ना मीसना है। तो हवा तक नहीं लगने दी। और नहीं तो क्या, हद हो गई है। इतनी खूबसूरत बीवी बगल में दबाए घूम रहे हो, और मजाल है जो कभी भनक भी लगने दी हो। उसके दोस्त जुमले कस रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे, जबकि अलीना ऐसे खड़ी थी जैसे क्लास में नालायक बच्चे की टीचर से इज्जत अफजाई हुई हो। महसूस पाकर ये ना करे कि मिराना ने ज़रूर नोट किया, और फिर वहाँ रुकी नहीं, चली गई। राहील को जब इस बात का पता चला तो ये न्यूज़ सुनकर वो भी शौक हो गया। मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड था, मुझसे भी छुपाया? यानी मिराना भाभी हैं? हमारी कसम से यार, तुम्हारा कपल मुझे रोज़ अव्वल से बहुत पसंद था। वो अपने दिल की बात जुबान पर लाता बोला, और फिर सब उसे वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे थे। छेड़छाड़ से हंसी मजाक शरारत में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। वापसी पर गाड़ी में बैठते ही फट पड़ी, और मेरे मना करने के बावजूद तुमने वही किया। और क्या ज़रूरत थी ऐलान करने की? कितनी बेइज्जती फील कर रही थी मैं, अंदाज़ा है। वो इस पर गज़बनाक हुई थी। मेरा बस चले तो मैं इश्तिहार लगवा दूँ, आप ऐलान को रुकवा रही हैं? वधू वधू बोला था, और उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा था। जवाब पर वो गहरी मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब कॉल करके अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड का हाल चाल पूछ देना। तुम्हारा ऐलान सुनकर वो बेचारी गैर हाजिर ज़रूर होगी थी। ज़ाहिर है धचका तो लगना ही था। तुमने खबर ऐसी नशर की वो बर्दाश्त न कर पाई। क्यों मुश्किल में डाल रहे हो उसको भी और ख़ुद को भी? ख़त्म करो इस सब को। ड्रामा, वो उससे फिर सुनाने लगी। क्या मतलब है ड्रामा? अब मेरी फीलिंग्स को ड्रामा कह रही है? उसका पाँव अचानक ब्रेक पर लगा। और हाँ, इसमें झूठी क्या है? उसने बेनियाजी से कहा। सच भी नहीं, आपको मेरी फीलिंग्स, मेरे हलूस को ड्रामा कहने का कोई हक नहीं पहुंचता। और अलीना क्या सोचती है क्या नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। एहरार ने तेज़ गुस्सैली लहजे में कहा था। क्यों तुम्हारा मसला नहीं है? जिस इत्तेफाक से तुम उससे मिलते हो उससे तो यही जाहिर होता है। फिर परफेक्ट मैच है तुम दोनों का। वक्त ज़ाया मत करो। वो संजीदा थी और एहरार खाइफ था। और आप मान क्यों नहीं लेती कि मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली मेरी अकलौती महबूबा और मोहब्बत सिर्फ आप हैं? वो बेबसी से बोला था। तमीज़ खातर रखो एहरार, तुम अभी बच्चे हो, ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। वो नागवारी से उसे टोक गई थी। बच्चा नहीं हो, इस गलत फहमी की तोक निकाल दें। उम्रों के इस फ़र्क को आपने अना का मसला बना लिया है। मेरे लिए आप और ये निकाह इतना ही आम है जैसे हर मोहब्बत करने वाले शोहर के लिए होता है। वो तड़प कर बोला था। और मैं आपको ज़िंदगी को गुलजार बनाना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसा क्यों अब ऐसा क्या करूँ जिससे आपको यकीन आ जाए। वो लाचारी से बोला था, और उसकी आंखों में आंसू टपाटप बहने लगे थे। रोया मत करें मेरे सामने, पर आप कहेंगी कि मजनू की तरह देखता है। वो शरारत से गोया हुआ तो मिराना ने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। तुझको अपना न बनाया तो मेरा नाम नहीं। गाड़ी के घर के सामने रुकी तो वो गुनगुनाते हुए बाहर निकल गया। मिराना ने अपने चिकराते सर को थाम कर बैठ गई थी। बावजूद कोशिश के वो गर्म सियाल को आंखों में बहने
से रोक न पाई थी। वो कब से टेरेस पर खड़ी बारिश को देख रही थी। उसे हमेशा से दिसंबर की बारिशें शामें अट्रैक्ट करती थी, सर्दियों से बहुत पसंद थी। अब भी उसकी ज़ात पर अजीब सी सोगवारी छाई हुई थी। उसने बेइख्तियार से थोड़ा आगे होकर दोनों हथेलियां फैला दी थी। यह पानी के ठंडे कतरे उसे अंदर तक सुकून पहुंचा गए थे और उसका चेहरा भी फुहार से गीला हो गया था। तब भी किसी ने पीछे से आकर उसके दोनों बाजों पर बड़ी नरमी से थामा। वो यकदम सटपटा कर रह गई थी और फिर संभली। सारी जर्सी गीली हो गई है, जाकर कपड़े बदल लें। ऐसा न हो कि आज की रात अब मेरे रहम करम पर हो, फिर मुझसे क्या बाइद, कब खुद पर कंट्रोल खो दूँ, क्योंकि आपके ख्याल में मैं कभी बदतमीज़ हूँ तो कभी बदतमीज़ों से कभी कोई तवक्को की जा सकती है। माँ ने हिजी से कहता हुआ वो उसे उस पल जहर लगा था। वो वहाँ से चली आई। रात के करीब 12 बज रहे थे। वो गहरी नींद में थी जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। अध खुली आंखों से गिरती पड़ती बमुश्किल दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोलते ही उसका हाथ किसी ने थामा और आगे बढ़ने लगा। उसके सहारे चलती गई और हर तरफ गुप अंधेरा था। नींद में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक कमरा रोशन हुआ तो उसकी आंखें धुंधला सी गई थी। इंतहाई खूबसूरत चॉकलेट केक पर उसका नाम लिखा गया था और केक पर मोमबत्तियां रोशन हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसने अपने शानों पर नरम सा दबाव महसूस किया और सरगोशी में ढली आवाज़ एक बारगी ही उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गई थी। वो जहाँ की तहाँ खड़ी रही और उसने यूं ही उसके पीछे खड़े होकर हिसार बांधते एक ही हाथ में उसका हाथ थामते हुए छुरी उसे पकड़ाई। मेगान के अंदाज में केक पर छुरी चली और एक बार फिर सरगोशी उभरी थी। 13 दिसंबर जितना हसीन दिन कोई नहीं हो सकता। उस दिन मेरी मोहसिन, मेरी जीस्त और मेरी रहनुमा इस दुनिया कायनात में जलवा अफरोज हुई थी और वो आंखों में हैरत समाये उसे देख रही थी। अब केक आप खिलाएंगी या जहमत भी हम करें? उसकी आवाज़ गूंजी तो वो होश में आई थी। खामोशी से केक का टुकड़ा निकालकर उसने हाथ में लिया। अब कश्मकश ये थी कि उसे खिलाए कैसे। तभी अहरार ने उसका हाथ थामकर खुद ही केक खा लिया था और फिर इसे केक को उसे भी खिलाया। गिफ्ट नहीं लेंगी? मेराना ने हफ्की से उसे देखा। कम से कम आज के दिन तो नाराज़गी खत्म कर दे। हमारे बीच 2 और रिश्ते भी हैं, एक कज़न और दूसरा दोस्ती का। तीसरे रिश्ते की गुंजाइश बाबा साईं ने निकाली थी, जिसे हम दोनों ने मिलकर निभाना है। वो उसके संजीदा तासुरात देखता हुआ बोला था। निभा तो रहे हैं, इससे ज़्यादा की तवक्को हमाकत है। वो हाथ बांधे बोली थी। हाँ, दुनिया में जितने भी अज़दवाजी रिश्ते हैं हमारे सिवा सब अहमक ही तो हैं और अहमक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं? क्या उनके सर पर सींग है? वो महज उम्र का तजाद जो वहाँ भी आ जाता और जहाँ रस्म रवाज ना हो। उसने तंज किया था। एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना जो मेच्योर ना हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी बात पर वो दम बखुद रह गया। मैं मेच्योर नहीं हूँ क्या? 25 साल का हूँ, शऊर और अकल है मुझ में। आप चंद साल मुझसे बड़ी हैं। बड़ी क्या हो गई हैं? दादी अम्मा समझने लगी हैं खुद को। जब मुझे कोई इशू नहीं तो आपको क्या मसला है? तंग आ गया हूँ मैं क्या बीवियाँ बड़ी नहीं होती? हमारे नबी और हज़रत हदायजा के दरमियान पर पूरे 15 साल की उम्र का फ़र्क था, लेकिन उन्होंने एक कामयाब और बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी। इससे बड़ी दलील क्या दूँ? उम्रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मियाँ बीवी के बीच प्यार मोहब्बत हो तो रिश्ते बरकरार रहते हैं। मैंने आपसे मोहब्बत की है बिना किसी मतलब के। आप मेरी मोहसिन ज़रूर हैं, मगर मेरी मोहब्बत और जज्बे हर घर से पाक हैं। वो बहुत हर्ट होता वहाँ से चला गया। मीराना गुमसुम से खड़ी रही और फिर आहिस्तगी से चलती उसके कमरे में आ गई, जहाँ वह मुंह खिड़की की तरफ किए खड़ा था। नाराज़ हो? वो मुस्तरिब सी बोली थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं नाराज़ होने का? वो उल्टा बोला था। मैंने तुम्हें हर्ट किया अहरार, सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जो गुस्सा निकाह के वक़्त था वो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा था। वो बेजोड़ रिश्ता मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि यह आपके साथ ज्यादती हो रही है, कि आपको एक बड़ी उम्र की लड़की को जीना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। वो सर झुकाए खड़ी अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी और अहरार उसके से अंदाज पर बेहोश होने लगा। चलें, देर आए दुरुस्त आए। वो उसके चेहरे की तरफ झुककर बोला तो मेराना नम आंखों से हंस दी थी। वो उसके गिर्द बाजू घुमायल करके उसे अपनी बाहों में भर गया था। बिलाशुबा सच्चे रिश्तों का कोई नेमुल बदल नहीं होता। हाइफ तो वो भी था और इन फजूदा रवैयात के खिलाफ, मगर मोहब्बत के क्यूब्ड ने उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। वो अल्लाह का शुक्रगुजार था कि जो फैसला उस वक़्त गलत था, मगर वक़्त ने उसे खुशकिस्मती से सही साबित कर दिया। वरना 2 साल की लड़की को 30 साल के मर्द और 40 साल की औरत को 5 साल के बच्चे से नत्थी करने का रवाज पुराना और पुख्ता था। दोनों ने फैसला किया कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए स्टैंड लेंगे।
اور اس روایت کو اپنے خاندان سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے لائکس، کمنٹس اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔